Good morning to all of you. Let's begin. Some students have joined. I will wait 1 more minute, not more than that, because still students are joining. Okay. So I will start with introduction. By that time, few will join and they can continue with the lecture. See, today's topic is body language, a non-verbal communication. In last two to three lectures, we had discussion on this, and I have given one test to you. That test was on emojis. You have to identify their expressions. That was in a Google form, and many of you have written it. Like from 10 emojis, you are able to identify 5 emotions properly, nicely, clear. But 5 you could not. Or I might say, like, some of you were closer to identifying the emotion, but not exact. So as I told you, I will minimize this so that you can see the screen. As I told you, this body language, or which we call it as a non-verbal communication. See, whatever we converse, I'm talking to you, you are talking to me, I'm asking you something, you are answering me. This is nothing but verbal communication. For this communication, we use a specific language. We produce sound, we deliver that language, and we understand it. Clear? By both the ways, like someone who is speaking and someone who is listening. So this understanding is with reference to pronounced words, with reference to language, okay, said language. But while conversing with each other, we are using our body for communicating. ये चीज पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते, शायद हमें ये कभी सिखाया भी नहीं गया है. आज मैं आपको ये बोल रही हूँ, बट मेरे व्हेन आई वाज इन स्कूल, दैट टाइम आल्सो नो वन हैज टॉट मी अबाउट ऑल दिस थिंग्स. क्लियर? बट आज ये हमें जानना, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है. इसके बारे में हमें मालूम होना बहुत जरूरी है. जैसे मैंने कहा था लास्ट 2 to 3 लेक्चर्स के why this is necessary, why it is important, because after your 12th standard you will enter into your professional course, and while doing your professional course uh, you will decide, or some of you might have decided what I want to do, what I want to select as my career. So some might be planning for business, some might be planning for job, isn't it? So for example, if someone is planning for business, so they have to go for the business meetings. Business meetings means if you want to increase your business, then of course you have to meet people, you have to engage people, you have to ask people to invest in your business. Okay, so there are many business deals. So for that you have to make meetings. And if you want to be, or if you want to crack that deal, जो सामने वाला आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला है, उसका बिजनेस आपको वो बिजनेस आपको मिलने के लिए आपको एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यूज करनी जरूरी है. सेकेंड थिंग, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समवन्स बिजनेस, that time in those meetings you have to judge that whether the person who is sitting in front of you is genuine or not.
ओके, ये तो हो गया चलो आने वाले समय की बात, जैसे और 4 साल आप प्रोफेशनल कोर्स करोगे और उसके बाद बिजनेस या कुछ चालू करोगे, फाइन। बट बिफोर दैट, एज आई टोल्ड यू, like for some courses, before admission, institutions they take interviews. So how to present yourself in interview, what should be your positive body language? मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो इंटरव्यूज होते हैं, आइदर एडमिशन के इंटरव्यूज है या प्लेसमेंट के इंटरव्यूज है, यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। दे कैन मीन्स दे आर सो they are so well versed in all these terms. By your simple gestures, they can understand what is going on in your mind. तो ये एटलीस्ट बेसिक लेवल पे हमें सीखना जरूरी है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है. There is one skill, soft skill, that is called as emotional intelligence. You must have heard about intelligence, different types of intelligence. Clear? But one of them, that is emotional intelligence. How इंटेलिजेंट यू आर ऑन द बेसिस ऑफ योर इमोशंस. तो आप कहोगे ये क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के मींस यू विल if you go in detail of emotional intelligence, you will find it is studied on 4 bases. The first is self awareness, awareness about your own self awareness. Second, that is awareness of others. तुम्हारे आजू बाजू में जो चल रहा है उसका अवेयरनेस होना. तीसरा है सेल्फ रेगुलेशन, जो पहला हमने देखा था, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में अवेयर रहना, मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या सही है क्या गलत है, उसका रेगुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ रेगुलेशन. देन रेगुलेशन ऑफ अदर्स, जो हमने दूसरों के बारे में अवेयरनेस किया है कि अरे मेरा ये फ्रेंड है या मेरा ये रिलेटिव है, इसका मेरी तरफ का बर्ताव ऐसा है, वो पॉजिटिव है, देन वेल एंड गुड, देन हाउ आई शुड बिहेव विथ हिम. ओके, बट इफ इट इज नेगेटिव, देन हाउ शुड आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ, हाउ शुड आई कीप अवे from that person who is having negative thoughts about me. That is called as रेगुलेशन ऑफ अदर्स. ये ना सब बहुत ब्रॉड टर्म्स है एंड इसके डिस्कशन के लिए हम एक अलग सा क्लास कर सकते हैं, लेकिन इसका कनेक्शन आज ये बॉडी लैंग्वेज का जो क्लास है उसमें है. इसके 2 पॉइंट्स, इमोशनल इंटेलिजेंस के जो 2 पॉइंट्स है, 2 की पॉइंट्स. द फर्स्ट वन, सेल्फ अवेयरनेस एंड अवेयरनेस ऑफ अदर्स. ये चीजों के लिए हमें बॉडी लैंग्वेज, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसके बारे में मालूम होना जरूरी है. ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? कैन यू सी माय स्क्रीन? प्लीज रिप्लाई. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. See, this is a very common pose. We all have seen it many times. And in body language aspect, if you think, then our hands and legs, they are communicating much more. Because some people are very expressive by their faces, but some people are not at all expressive by their faces. अभी आप ये कहोगे कि कैसे जाने? So I will tell you, this is again a deep study. ये बहुत ही डीप स्टडी है. आज हम इसके बेसिक के बारे में जानने वाले हैं. Even there are career opportunities, as I told you, in your placement interviews or in some other interviews, experts are sitting. So if you take training for this, you can be expert and you can get job as a profession. Yeah. So this pose, you can see a person who is sitting or standing by closing his arms or by crossing his arms across the chest. Clear? ऐसे कोई खड़े भी होते हैं, हम देखते हैं खड़े खड़े भी कोई लोग ऐसे होते हैं, या बैठे बैठे भी कोई लोग ऐसे होते हैं. What this indicates, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है that people either they are defensive, means आप जो भी बोल रहे हो, आप जो भी कह रहे हो,
वो उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है, देयर डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज। क्लियर? सेकेंड, के दे आर फाइंडिंग देमसेल्व्स एज अ इनसिक्योर पीपल, कि मेरे जो आजू बाजू में है वो थोड़ा मेरे से डोमिनेट है, उन्हें मेरे से ज्यादा समझता है और मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, इसलिए हाथ उन्होंने क्लोज करके रखे हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी, दे माइट बी अनॉयड, गुस्सा हो गए हैं, एंग्री है। चौथा पॉसिबिलिटी है दे आर स्टबन, क्या क्या तुम कहने वाले हो, क्या तुम्हें ही सब समझता है, तुम्हें ही सब शानपना आता है, ऐसा भी थॉट होता है ना लोगों का। जब हम 4-5 लोग साथ में बात करते हैं तो कोई कोई लोग हमें ये जेस्चर में दिखते हैं, तो तुम्हें वो जेस्चर को समझना है, यू नो, जस्ट क्रॉस्ड आर्म्स अक्रॉस द चेस्ट इट डजंट मीन दैट पर्सन इज एंग्री, हमेशा यही उसका मीनिंग नहीं होता है। या पर्सन इज डिफेंसिव, डरा हुआ है, डिसएंगेज, डिसएंगेज का मतलब है कि यू नो पीपल आर टॉकिंग, चलो लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है, रहने दो, लेकिन मैं हूं, मैं इनको बता रहा हूं कि मैं यहाँ पे हूँ। ठीक, तो ये आपको समझना है कि एग्जैक्टली वो सिचुएशन, वो कॉन्टेक्स्ट में ये क्लोज्ड आर्म्स और क्रॉस्ड आर्म्स आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वेदर इट इज अ डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज, वेदर दैट पर्सन इज feeling insecure, whether he or she is annoyed or disengaged, ये आपको वो सिचुएशन, वो कॉन्टेक्स्ट से अंडरस्टैंड करना है। नाउ सी, when you are talking to your friends, then it is easy because you are already knowing your friends, कौन कैसा है आपको पहले से मालूम होता है। So वो केस में ये बॉडी लैंग्वेज टिप्स आपको ज्यादा हेल्पफुल होती है। बट वेन वी आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, पहली बार किसी से मुलाकात हो रही है और ऐसे सब बॉडी लैंग्वेज, ऐसे सब जेस्चर्स हमें दिखते हैं, तब उनका मीनिंग लगाना चाहिए। वी शुड बी एबल टू relate these gestures with the conversation which is going on. Okay, but if someone is sitting with this position for longer time and if climate is cold, ठंड है, ओके, और कोई आदमी ऐसे जेस्चर में बहुत ज्यादा समय तक बैठा है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए, एक तो ठंड के कारण बॉडी को वार्मथ देने के लिए ऐसा बैठा है, अदर वे यू शुड अंडरस्टैंड दैट पर्सन इज टायर्ड, थक गया है। क्लियर? और कभी कभी ऐसे होते हैं कि चेयर जो है उनको आर्म्स नहीं होते हैं, हाथ रखने के लिए कुछ नहीं होता है, यू नो, आर्मलेस चेयर है। In that situation, in that case, so as to support shoulders, people might take this position. So keep in mind, कोई भी पोज है, कोई भी जेस्चर है, उसका रिलेशन या उसका मीनिंग सिर्फ एक नहीं होता है। यू हैव टू रिलेट इट विथ कॉन्टेक्स्ट, यू हैव टू रिलेट इट विथ सिचुएशन एंड देन इंटरप्रेट इट। We will move to the next slide. टैपिंग फिंगर्स, आपने देखा होगा कोई कोई लोग बैठे बैठे ऐसे फिंगर्स को टैप करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं, तो फिंगर टैपिंग है। कोई कोई जो पैर है वो जोर जोर से हिला के उसका आवाज करते हैं। पेंसिल टैपिंग है, आप भी बैठे बैठे बेंच पे पेंसिल का आवाज करते हो, ओके, या पेन की आवाज करते हो। कीबोर्ड टैपिंग है, माउथ टैपिंग है, बैठे बैठे लोग ऐसे मुंह पे फिंगर जो है वो टैप करते हैं। लिप टैपिंग है, हेड टैपिंग है, सर को मारते हैं, ड्रमिंग है। तो ये कोई भी टैपिंग है, फिंगर, फूट, पेंसिल, पेन, कीबोर्ड, इसका क्या मीनिंग है? एक है कि वो जो सामने वाला बैठा है वो इम्पेशेंट है, वो बोल रहा है कि अरे चलो जल्दी जल्दी खत्म करो, या ये कितना समय मेरा वेस्ट हो रहा है। दिस इज वन इंडिकेशन। अदर इंडिकेशन, द पर्सन मस्ट बी नर्वस, कुछ तो हुआ है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, एंजाइटी है, ओके, कुछ तो चिंता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और नेक्स्ट हो सकता है कि ये करते करते उसके माइंड में कुछ तो विचार चल रहा है, ही मस्ट बी थिंकिंग समथिंग,
ट्राई टू रिलेट दिस जेस्चर्स विथ यू। कभी ना कभी हमने सबने ये किया है, हम टैपिंग करते हैं, आवाज निकालते हैं, टेबल या पेन से, क्या करते हैं? ट्राई टू रिलेट, थिंक ऑफ, तुम्हारे माइंड में सोचो कि हम ये क्यों करते हैं। क्योंकि एक तो हमारे मन में कुछ विचार चलता है, नहीं तो हम बोर हो गए हैं, नहीं तो कुछ तो चिंता है। तो जो मैं विचार कह रही हूँ, नो, some thoughts are going on in mind, those thoughts must be constructing something, कुछ तो सोच रहे हैं, नहीं तो सच में कुछ तो चिंता कर रहे हैं। So tapping, it is related either with boredom, anxiety or construction of some thoughts. Next है tilting your head to one side. ये हम हमेशा देखते हैं जब when we teach in class. So some students, they tilt their head. You can see this is a normal position, but head is tilted to one side, either on left or on right. Clear? So this tilting is indicating that person is taking interest in your talk. है ना? हम बोलते हैं ना क्लास में कि हाँ तुम, मैं आपको कहती हूँ कि तुम क्लास में बैठे हो बट तुम्हारा ध्यान कहीं और है। क्यों ये हम ऑब्जर्व, लाइक क्यों हम ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं, क्यों हम ये समझ पाते हैं? क्योंकि ये जो बॉडी लैंग्वेज के साइंस है, ये हमें इजीली बोल देते हैं कि कौन कितना अटेंटिव है, कौन कितना अटेंटिव नहीं है। सो whenever if you are talking to someone and the person who is sitting next to you or standing next to you tilting his head to the left or right, then you should be able to understand that person is taking interest, a deep interest in your talk. So accordingly, you have to change your talk, go more and more deeper, because person is taking interest. Okay. Next, this position, you can see stippling fingers. A person is holding their fingertips together and palms are apart. फिंगर टिप्स जो है वो साथ में है, लेकिन जो पाम्स है वो एक दूसरे से जुड़े नहीं है, दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो ये जो जेस्चर है या ये जो पोज है, व्हाट दिस इंडिकेट्स, दिस इज एक्चुअली इंडिकेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, कंट्रोल मेरे हाथ में है। जो बॉस होता है, या हम कहेंगे जिसके हाथ में पावर होती है, जनरली वो लोग ऐसी पोज लेते हैं। आपको आप देख सकते हो ऑन टेलीविजन, पॉलिटिशियंस जो होते हैं जनरली ये जेस्चर फॉलो करते हैं। क्यों? बिकॉज दे वांट टू इंडिकेट, दे वांट टू शो दैट पावर इज विद मी। कीप इन माइंड, कोई भी ऐसा बैठा है आपके सामने नॉर्मली, हाँ, फ्रेंड्स में भी या रिलेटिव्स में भी, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हाथ, ये जेस्चर क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉन्वर्सेशन में, ये जहाँ पे इतने यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, 5 or 6 or 7 or 8 or 10, whatever may be the number, but I want to take authority of these people. ये जेस्चर ये इंडिकेट करता है पावर, कंट्रोल। Okay, come to the next, that is crossing legs. Is crossing legs, 3 types of crossing. पहले मैं ये फोकस करूंगी कि क्रॉसिंग एट एंकल। स्टूडेंट्स, can you hear Yes. me? Yeah. Yes. Are you understanding? Are you able to understand? Yes. Okay. Yes, ma'am. Yeah. आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो you can unmute and you can ask. See, crossing legs at ankle, ये एक पोजीशन है। फिर क्रॉसिंग लेग्स एट नी, नी पे क्रॉस करके बैठते हैं। एंड द थर्ड इमेज, दैट इज इन अ 4 पोजीशन, क्रॉसिंग लेग्स इन अ फिगर 4, जो हमारा हम फिगर 4 लिखते हैं ना, वैसे। तो ये जो पोजीशन है क्रॉसिंग लेग्स एट एंकल, दिस इंडिकेट अ पर्सन इज हाइडिंग समथिंग। क्लियर? यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है? पर्सन इज हाइडिंग समथिंग, कुछ तो वो हाइड कर रहा है आपसे, कुछ तो वो छुपा रहा है। क्लियर? जनरली हमें ये कब दिखता है मालूम है? हम देखते हैं कि बस स्टॉप पे लोग ऐसे खड़े होते हैं। ऐसे क्यों खड़े होते हैं? वो क्योंकि वो किसी को
किसी की तो राह देख रहे होते हैं, और ऐसी राह देख रहे होते हैं कि जो सामने वाला आने वाला है वहां पे, उसको ये मालूम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन योर टीनेज नो, कोई तो फ्रेंड है जिसकी आप राह देख रहे हो, लेकिन उसे मालूम नहीं है उसकी आप राह देख रहे हो, तब ये जेस्चर दिखता है। when you are sitting and we are and when you are conversing, हम एक कुछ तो हार्डकोर डिस्कशन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं सब लोग, बट someone is sitting with this position, तो आपको ये सोचना ही है this person is hiding something, this person is hiding। हाँ, अभी ये जो छुपाने की बात है, ये हाइडिंग शायद बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत छोटी बात हो सकती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट कहीं ना कहीं उसका रिलेशन है। ये जो पोजीशन है क्रॉसिंग लेग्स एट नी लेवल, व्हाट दिस इंडिकेट्स? दिस इंडिकेट्स द पर्सन इज अनकंफर्टेबल विद द अदर्स। इनके साथ आप बैठे हो, उनके साथ आप अनकंफर्टेबल हो। क्लियर? दिस पोज इज इंडिकेटिंग अनकंफर्टेबल फील। तो याद रखो, कोई भी इंटरव्यू में जाओगे, बिजनेस डील करने जाओगे, तो ये पोजीशंस नहीं लेना। क्रॉसिंग लेग एट एंकल, सामने वाला समझ जाएगा ये कुछ तो छुपा रहा है। क्रॉसिंग लेग एट नी, उसके सामने आप ऐसा बैठोगे तो क्या पता लगेगा क्या क्या समझने वाला है सामने वाला, ये तो अनकंफर्टेबल है मेरे साथ। हाउ विल आई प्रोसीड विद द बिजनेस डील? क्लियर? तो कभी भी इंटरव्यू में, बिजनेस डील्स में आपको ये पोज नहीं लेनी है। You can take this pose, but try to understand with reference to females or girls. This pose is not at all good. Males can take this pose, that is figure 4. This pose or this gesture is indication of, you can say, comfort. Cross, see, figure 4, number 4. Okay, ये क्या देता है, क्या इंडिकेट करता है? डोमिनेयर, पावरफुलनेस, मैं पावरफुल हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट एट माई लेवल, आई एम कॉन्फिडेंट एट माई थॉट्स। तो कभी भी आपको लेग्स क्रॉस करने हैं कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में, तो ये कर सकते हो, बट ऑफकोर्स दिस इज नॉट एडवाइजेबल फॉर दी फीमेल्स और गर्ल्स। ये आपको नहीं फॉलो करना है। देन पुलिंग योर ईयर। हम कभी देखो, बात करते करते कोई हमें पूछता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 days back I have asked for one experiment, and if someone is pulling ear, that time he or she must be thinking whether am I able to do this or not। सोचते हैं हम, मुझे ये करने के लिए टाइम मिलेगा क्या, मेरे घर में ये मैं कर सकती हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या। क्लियर? डिसीजन means whenever you are talking to someone, somebody, you are asking something, हम ये करेंगे क्या, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस डील ही है, ओके, या फ्रेंड्स को पूछ रहे हैं आज हम शाम को घूमने जाए क्या, और कोई फ्रेंड ऐसा ईयर्स को पुल करता है, व्हाट इट इंडिकेट्स? दैट पर्सन इज स्टिल नॉट अराइव्ड ऑन डिसीजन, he want time to take decision, trying to make decision। clear? We will go to the next. Yeah, putting your head in your hands. This happens many times. Okay. So the very first indication, person is very tired, very tired. बहुत ज़्यादा थक गए हैं, very bored. And the third indication, very upset, very upset. ये क्या हो गया? What have I done? मैंने ये नहीं करना चाहिए था. Ashamed, very ashamed of the act or the speech they have done. So putting your head in your hands has 3 meanings: very tired, very bored, and the third thing,
वेरी वेरी अपसेट, कुछ तो ऐसा हो गया है कि जिससे मैं बहुत ही अपसेट हूँ या शर्मिंदा हूँ। इतनी शर्मिंदगी है कि मुझे मेरा जो फेस है वो छुपाना पड़ रहा है। दैट इज पुटिंग योर हेड इन योर हैंड्स। नेक्स्ट, जेस्चरिंग विथ योर हैंड्स ओपन। ये जो पाम है, ये पाम, जब keep in mind whenever you are talking to someone and they are using their hands in up position, ये जो palms है ये ऊपर बता के आपसे बात कर रहे हैं, believe that they are not lying, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो सच बोल रहे हैं। ये जो हाथ है, खुला हाथ, open palm indicates openness। ओके, लोग कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे, इनसे हमें डर नहीं है। दिस हैज रिलेशन विथ हिस्ट्री। whenever there was battle with two teams and the one team is showing open palm, it indicates that there are no weapons in their hands. So this meaning, this open palm has meaning or has relation from historical events, especially with reference to war. Then palm down. Palm down position. What this indicates? Authority, dominance. देखो कोई कोई हैंडशेक करने में उनका हाथ ओपन होता है, पाम ओपन होता है, तो वो सबमिसिव है, शांत विचार के लोग हैं, डोमिनेट नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि बॉय वांट्स टू प्रपोज अ गर्ल और एंगेजमेंट के समय बहुत से लोग नीचे बैठते हैं बॉयज, और लड़की का जो हाथ है वो मांगते हैं। तो हाथ मांगने का तरीका ऐसे होता है, उसमें सबमिसिव नॉन थ्रेटनिंग जेस्चर होता है, और कोई कोई लोग शेक हैंड करने के लिए हाथ ही ऐसा देते हैं, पाम डाउन। तो व्हाट इट इंडिकेट्स, याद रखो, कोई शेक हैंड करते समय ऐसा हाथ दे रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है पावर इज विथ हिम, ही इज डोमिनेंट, और ही वांट टू शो दैट डोमिनेंस टू यू। मेरे पास पावर है, मैं डोमिनेटिंग हूँ, ये इंडिकेट करता है। एंड द थर्ड जेस्चर दैट इज पॉइंटिंग फिंगर। ये पॉइंटिंग फिंगर क्या बताती है? This pointing finger indicates that you have to listen or you have to do whatever I am saying. Okay, so I am dictator or I am a dominator and you should be listener. तो ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं नेगेटिव के तरफ जाने वाली बॉडी लैंग्वेज है। हम किसी से बात करते हैं फिंगर पॉइंट आउट करके, क्या कहता है ये? सुनो, मेरे पास पावर है, मेरे पास डोमिनेंस है। तो कब हम ये यूज करते हैं तब हम बताते हैं कि आई एम विद पावर, आई एम विद डोमिनेंस, और जब सामने वाला यूज करता है तो हमें ये समझना है कि ये हमें डोमिनेट करना चाहता है। We will go further. Looking down. When individual is not making eye contact, okay, looking down. So there are 2 to 3 meanings. One, he or she is unconfident, okay, or less confident, weaker feel कर रहा है, और they must be hiding something, कुछ तो छुपा रहे हैं, because they are not making eye contact. Two things, either they are finding themselves weak, less confident, or they must be hiding something from you. Then this next position, next gesture, that is rubbing your hands together. Okay, हाथ जो है वो अपने हाथों पे, मीन्स दो जो पाम है वो एक दूसरे पे रब करना। दिस इज इंडिकेशन ऑफ एक्साइटमेंट। अरे कुछ तो नया सीखने वाले हैं, कुछ तो नया जानने वाले हैं, कुछ तो नया सुनने वाले हैं। दिस इज
excitement. So this gesture is indicating excitement. Now placing your hand on your cheek. दो तरीके का होता है. यहाँ पे देखो, ये हाथ फोल्डेड है और ये जो पाम है ये चिक पे है. दिस इंडिकेट इंटरेस्ट. whatever you are talking, whatever you are speaking, I am interested. एंड ये जो जेस्चर है, हाथ नीचे है, एंड ये बोर्डम, क्यों बोर हो रहा है? ये अपने हेड को सपोर्ट कर रहा है. यानी तुम जो बात कर रहे हो उससे मैं बोर हो गया हूं, मैं थक गया हूं, अभी बंद करो. दिस इज जेस्चर ऑफ बोर्डम. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टू. इसमें ये जो हाथ है ये नीचे है और ये हेड को सपोर्ट कर रहा है. यहाँ पे ये हाथ भी ऊपर है और दिस हैंड, दिस palm is on cheek. It is not supporting head. So this is indication of interest. Then rubbing your eye. आंखें है ना, रब करते हैं. So if you are talking to someone and the person standing next to you or the person sitting next to you start rubbing eye, this indicate that person is having doubt on your speech. तुम जो भी बोल रहे हो उसे वो डाउटफुल लग रहा है. क्लियर? तो जब भी आपको सामने वाले का ये जेस्चर दिखता है तब आपको आपका स्पीच ज्यादा क्लियर करना चाहिए, क्योंकि उसके मन में डाउट आ रहा है आप जो भी बात कर रहे हो उस पे. तो वो डाउट कम करने के लिए यू हैव टू क्लियर और यू हैव टू लाइक यू नो मोर इलॉबरेटिव. और आपको ऐसी बात करनी है कि ताकि सामने वाले को विश्वास हो जाए. और जब सामने वाला आपके साथ बात करते समय ऐसा कर रहा है, देन यू शुड अंडरस्टैंड ही मस्ट बी लाइंग. कुछ तो छुपा रहा है आपसे वो, है ना? ऐसी कुछ तो बात कर रहा है जिसपे विश्वास नहीं करना चाहिए. रबिंग और टचिंग योर नोज. एक याद रखो हमेशा ही, whenever person covers his mouth and nose with any gesture, with finger or with entire hand or covering with palms, this is related to dishonesty. वो आपसे कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो झूठ बोल रहा है. कभी भी याद रखो, बोलते समय बोलते बोलते, if individual is touching his nose, if individual is touching his mouth, covering his mouth, covering his nose, this indicates dishonesty. तो आपको कुछ तो बिजनेस डील करना है, आप इंटरव्यू में बैठे हो और ऐसे मुंह छुपाते हो, मुंह को हाथ लगाते हो, नाक को हाथ लगाते हो, तो ये कुछ अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं है. जो सिचुएशन, जो मीटिंग्स में आपको ओपननेस बताना है, ऑनेस्टी बतानी है, तब ये बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए. देन स्टैंडिंग विथ हैंड्स क्लैस्प बिहाइंड योर बैक. ऐसे पीछे हाथ पकड़ के. ओके, तो ये जो पोजीशन है ना, ये एंगर बताती है. ओके, देन एप्रीहेंशन बताती है या फ्रस्ट्रेशन बताती है कि अरे ये क्या हो गया. आपको दिखते समय वो बहुत अच्छी दिखती है, कैजुअल पोज दिखती है, बट वो दूसरों को अनकंफर्टेबल करती है, दूसरों को अनकंफर्टेबल करती है. देन दिस पोज, लाइक पिंचिंग द ब्रिज ऑफ योर नोज. नोज को, नोज का जो ब्रिज है ये पिंच करना. ये क्या कहता है? अरे क्या कर दिया भाई, क्या कर रहा है, स्टॉप डूइंग दिस. ओके, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस. सो दिस इज समथिंग नेगेटिव जेस्चर, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज. स्टैंडिंग विथ योर हैंड्स ऑन योर हिप्स, ये what this indicates? Power, aggressiveness, dominance. Okay, but sometimes it must be enthusiasm. A person is ready, person is enthusiastic to do something. That is standing with your hands on your hips. Walking briskly, जल्दी जल्दी चलना. कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो तो हम कैसे चलते हैं? देखो स्टेशन पे लोग कैसे चलते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग. आराम से चलते हैं क्या सुबह सुबह ऑफिस जाना है तो? नहीं,
brisk walking. So हमेशा याद रखो, if you are going for important meeting, if you are going for interview, your speed of walking should be proper. वहां पे आप आराम से मत चलना, सामने वाला समझ जाता है ये चल ही ऐसा रहा है तो ये क्या काम करेगा. Clear? So your brisk walking is indicating lot many things. Thank you. I have tried to cover many gestures. If you want to go in detail of each, we can go separately, क्योंकि ये हर एक gesture का एक डिटेल सेशन हो सकता है. अभी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैवंट अंडरस्टूड एनीथिंग, यू कैन आस्क.